everyone, as I have told you, I will make one video for online classes by using Zoom app, that how we teachers use the Zoom app for online teaching. Okay, so I am here with this video. I hope that this video will helpful for you all. Okay, now let's get started. First of all, you have to download the Zoom app. As you can see, I have already downloaded and I hope that you also have downloaded this Zoom app. First of all, you have to log in with this app, with Facebook account, with your Google account, and you can sign up also. It is up to you. What is the benefit of login? You will get more tools for teaching. Okay, so that's why we use first login. Okay, because I have already logged in, so I am clicking on the Zoom app. When you will click on this, when you will open your Zoom application, it will appear like this. 4 option at bottom you can see. Last में आप देखेंगे bottom में you can see meet and chat, meetings, contact, settings. These are the 4 options. Go to the setting. One ma'am has asked to me कि मैम उसमें कई बार होता है कि बच्चों ने नेम नहीं लिखा है और उनके मॉडल से आ रहा है, नंबर से नहीं, उनके नेम से नहीं आ रहा है, उनका आईडी उनके नंबर से आ रहा है, तो उनको कैसे बताएंगे या फिर उनको कितने मतलब अटेंडेंस कैसे लेंगे, हाउ वी विल टेक अटेंडेंस. सो वी हैव टू टेल देम go to the setting. After that your ID will come. Click on this ID. You can see here options. Many options are there and you can see this display name option. Touch this display name because already I have written my name. If you have not written, then you can write here and after that click on OK. I think till here it's done. Now move to meet and chat. अब क्या करना है? इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अ मीटिंग, जैसे कि हम प्रिंसिपल सर जब मीटिंग लेते हैं तो ज्वाइन करते हैं, तो सिंपली हम कहाँ से जाते हैं, यहाँ से जाते हैं ज्वाइन मीटिंग पे, मीटिंग आईडी डालते हैं जो सर ने हमें दिया है, फिर ज्वाइन करते हैं. ठीक, बट अब क्या करना है, हमें पढ़ाना है. वी हैव टू स्केड्यूल अ मीटिंग. यस, तो व्हाट वी विल डू हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्केड्यूल अ मीटिंग. सो यू कैन सी ऑन द टॉप 4 options: new meeting, join meeting, schedule and share screen. You have to schedule the meeting first. Touch on the schedule meeting. You will get these options. First of all, you have to select the date. Okay, so because I am going to discuss how to how it will work, how the Zoom app will work while online classes, कैसे वर्क करेगा ये. सो मुझे तो यही आज का डेट लेना पड़ेगा. अगर आपको कल मीटिंग लेनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपके पास ये ऑप्शन आएगा. अगर आपको 1 जुलाई को मीटिंग लेनी है तो क्या करेंगे आप, या तो आप डेट पे क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ से एडिट कर सकते हो और 1 जुलाई लिख सकते हो. ठीक है, डायरेक्ट आप यहाँ से. अदरवाइज आप यहाँ से आप ऊपर प्लस ऑप्शन करोगे तो ऑटोमेटिकली अगला डेट आ जाएगा. ठीक, नाउ this way you can set the date. After that click on the set link, set option. आपको होस्ट बनना है तो first of all you will set the schedule. These are the 4 options you can see on the top: new meeting, join, schedule and share screen. First you have to go to the schedule. After that, with the help of these options, you can select the date of the meeting, of the class or time of the class, when you will take the class. Okay, so because I am going to discuss right now, so I will select today's date. So it is already selected, I will not change. If you want to change, you will touch on this and you will get the option so that you can change here.
है ना. यू कैन चेंज द डेट फ्रॉम हियर. आई हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड 30. नाउ टाइम on the screen it is 3:37, so 3 minutes after I am taking time, so 2:40 I am taking. Okay, so 2:40. time I have set, I have selected. Okay, and 2 you can select 2 also. कितने देर का मीटिंग लेना है ये भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. अब उसके बाद क्या करना है, पासवर्ड यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ. अगर आपको लग रहा है कि पासवर्ड यही रहेगा, पासवर्ड हर मीटिंग के लिए यही छोड़ना है, तो छोड़ सकते हो. अगर आपको लग रहा है कि नहीं इस मीटिंग के लिए पासवर्ड ये रहेगा, अगला जो क्लास लेंगे उसमें पासवर्ड दूसरा हो जाएगा, तो यू कैन एडिट द पासवर्ड. कैसे जाएंगे, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है. आप इसको डिलीट करके, इसको इरेज करके आप दूसरा पासवर्ड अपने चॉइस से कुछ भी बना सकते हो. ठीक है. ऐसे करके ये ऑप्शन हो गया. आपने मीटिंग को शेड्यूल कर दिया है. आप यहाँ पे डन के ऑप्शन पे जाओगे. डन के ऑप्शन पे जाओगे, आपका शेड्यूल हो रहा है. ठीक. अब ये आपके मेल पे आएगा. अब आप इसको मेल से भी शेयर कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो. कॉपी कर लो, यहाँ से टच करोगे तो क्या होगा, ये पूरी मीटिंग आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो यहाँ से. और if you want to select only meeting ID and password, you can select this also. If you want to select all, so it is up to you. तो अगर अब मैंने सेलेक्ट किया, इतना सेलेक्ट कर लिया, इसको कॉपी करना है, कॉपी किया. कॉपी करके आपको जहाँ भी पेस्ट करना है, जिसे भी भेजना है, जहाँ भी जिस ID पे भेजना है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे भेजना है तो वहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो. अब इसको व्हाट्सएप पे शेयर करना है. चलिए, आई हैव कॉपी दिस. क्या है, you can select this file, copy it. After that you can send anywhere. If you want to share with the student, select the student group first. Here is the group. You can select whatever is the students group, you can select and you can share it. Okay, come to the meeting. Again what you will do, I have to start the meeting. So start the meeting. अब मीटिंग में क्या क्या करना है, आप उस पर क्या क्या कर सकते हैं. चलिए, म्यूट, स्टॉप वीडियो, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप माई वीडियो. आई हैव स्टॉप्ड इट. सो दीज आर द 5 ऑप्शन यू कैन सी. म्यूट, स्टार्ट वीडियो, शेयर, पार्टिसिपेंट एंड मोर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to join all the participant because you are the host. Okay, you can see here participant option is there. Touch on this participant option. All the participant list will appear here. After that you will invitation will come, है ना. You have to join them. Admit का option आएगा. Admit, the option will come like admit, so you have to admit. Click on the admit and after that all the participant will join the meeting. After that what you will do, you will mute all the participant. इससे क्या होगा कि जो इंटरप्शन नहीं होगा. कुछ अगर कोई उसमें कोई बातें कर रहा है तो उसमें इंटरप्शन नहीं आएगा. आप जो टीचिंग कर रहे हो उसके बीच में कोई इंटरप्ट नहीं कर पाएगा. तो यहाँ पे क्या करना है, म्यूट ऑल में जाना है. इससे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आएगा अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्फ. जब भी उन्हें कुछ क्वेरी होगी तो वो खुद अपने आप को अनम्यूट करेंगे और तब जाके वो कुछ पूछ सकते हैं. ठीक है, तो म्यूट ऑल कर देंगे तो सारे पार्टिसिपेंट क्या हो जाएंगे, म्यूट हो जाएंगे. अब एक क्वेश्चन है कि आप अटेंडेंस कैसे लोगे. तो पार्टिसिपेंट जब सारे ज्वाइन हो जाएंगे, व्हेन आफ्टर 5 मिनट, एटलीस्ट गिव देम 5 मिनट टू ज्वाइन द लेसन. जैसे ही वो लेसन को ज्वाइन कर पा रहे हैं, पूरा 5 मिनट हो गया है, पार्टिसिपेंट की लिस्ट यहाँ पे अपीयर होगी. बिकॉज मैंने किसी को भी अभी ऐड नहीं किया है. आई हैव नॉट एडेड एनीवन बिकॉज आई एम ओनली डिलीवरिंग इट कि कैसे करना है. तो यहाँ पे वो सारे ऐड आ जाएंगे पार्टिसिपेंट के नेम. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि स्क्रीनशॉट ऐसे आप ले सकते हो. ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया और बाद में आप उसको अटेंडेंस में यूज कर सकते हैं. अगर आपकी एक बार में नहीं आ रही तो आप इसको स्क्रॉल कीजिए, फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए, आप उसको सेव, स्क्रीन सेवर में अपने आप जाके सेव हो जाएगा. ठीक है, चलिए अब चलते हैं, बैक करते हैं. बैक जाने के लिए आप यहाँ पे क्लोज ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं.
अगेन अब हमारा आता है पढ़ाने का काम, हाउ वी विल टीच देम। सी, इफ यू वांट टू शेयर एनीथिंग, लाइक इफ यू वांट टू डिलीवर अ लेक्चर, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, अपने आप को म्यूट नहीं करना है, आप अपने आप को अनम्यूट रखोगे एंड देन यू विल स्टार्ट द वीडियो। इट इज व्हाट, स्टॉप, यू कैन सी हियर क्रॉस किया हुआ है, आप यहाँ पे अपने आप को वीडियो को शेयर, वीडियो को क्या करोगे, स्टार्ट करोगे, यू विल टच इट, देन वीडियो विल स्टार्ट। ओके, अभी तो फोटो दिख रहे हैं और जब आप इसको टच कर दोगे यहाँ पे तो वीडियो आने लगेगा, ठीक है, एज यू कैन सी। अब आपको कुछ शेयर करना है, जैसे आपको शेयर का ऑप्शन आ रहा है, शेयर पे टच किया, शेयर पे ऑप्शन आया, ये देखिए कौन कौन से शेयर के ऑप्शन आया, माइक्रोसॉफ्ट, वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, बॉक्स, फोटो, डॉक्यूमेंट, वेब यूआरएल, मेनी थिंग्स आर देयर। आपने डॉक्यूमेंट कहाँ पे रखे हैं, वेयर यू हैव सेव्ड योर डॉक्यूमेंट। आपको फोटो शेयर करना है तो आप यहाँ पे फोटो पे भी जा सकते हो, जैसे कि अभी मैं चेक करके दिखा रही हूँ। आपको कहाँ फाइल रखी हुई है, आपने फाइल्स में रखा है, ड्राइव में रखा है, कहाँ पे रखा, फाइल मैनेजर में रखा है या गैलरी से लेना है, कहाँ से आपको लेना है, ये आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो अबाउट इट, कि आपको कहाँ से फाइल लेनी थी लेसन के लिए जो लेक्चर आप ले रहे हैं, ठीक। तो ये मैंने दिखा दिया आपको कि क्या करना है, यहाँ से आप फोटो कहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको डॉक्यूमेंट लेना है तो चलिए, डॉक्यूमेंट आपने कहीं सेव कर रखा है, जैसे कि डॉक्यूमेंट में क्या, आपने कोई फाइल सेव कर रखी है, पीडीएफ फाइल सेव कर रखी है, या फिर यू हैव सेव्ड पीपीटी, सो मेक श्योर दैट योर पीडीएफ और योर पीपीटी जो भी आप इसमें करने वाले हो, मेक श्योर दैट इट शुड बी सेव्ड इन योर डिवाइस, नॉट योर एसडी कार्ड। ओके, तो आप इसमें ऐसे, इससे बेनिफिट ये होगा कि जैसे आप ये डिवाइस स्टोरेज ऑन करोगे तो आपको इसी में सबसे, जहां भी आपने लिख रखा है नेम के साथ आपका अपीयर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2 पीडीएफ इंस्टॉल करके रखे हैं, जूम डेमो क्लास का एक और कंबाइंड मैथ्स रिवीजन का एक। तो जो भी मुझे ओपन करना है वो मैं ओपन करके अभी दिखा दूंगी। आपको भी ऐसे ही करना है। कैसे? डिवाइस में सेव करना है। यू हैव टू सेव योर फाइल इन योर डिवाइस, नॉट योर एसडी कार्ड। फाइन, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस। कोई भी सेलेक्ट कर लेती हूँ, जैसे आज मैंने ये दिखाया था, चलिए डेमो ले लेते हैं। ठीक, टिक हो गया। यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आता है, यू हैव टू टच दिस शेयर ऑप्शन। टच किया, आ गया। अब देखते हैं जो भी मेरे स्क्रीन पे है, दिस इज विजिबल ऑन माई स्क्रीन, इट विल बी विजिबल इन द स्टूडेंट पार्ट ऑल्सो। उनके स्क्रीन पे भी दिख रहा है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पेन का ऑप्शन आ रहा है। When you will touch this option, many options will be there. You can see spotlight, pen, highlighter, color, eraser, clear. ठीक, आप यहाँ पे यूज करते हो कि you can use if you want to highlight this, if you want to highlight this, कोई ऑप्शन कुछ भी यहाँ पे हाईलाइट करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाईलाइटर लेंगे। You can change the color also. येलो लेना है तो I have selected, चलो येलो ले लिया। ठीक है, हाईलाइट करना है, ठीक, तो हाईलाइट ऐसे कर दिया। जहां भी आपको हाईलाइट करना है, यू कैन हाईलाइट लाइक दिस। ठीक है, इफ यू वांट टू हाईलाइट, हाईलाइट लाइक दिस। ओके, इफ यू वांट टू क्लियर, व्हेन यू विल नॉट इरेज इट, तो क्या होगा ये, इसमें ये होगा कि जब आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे, अब आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे कैसे, आप अगर डायरेक्ट सोचोगे कि ऐसे स्क्रॉल कर दूंगा तो ये नेक्स्ट पेज पे चलेगा, नो, इट विल नॉट गो डायरेक्टली। व्हाई? बिकॉज देखो, बिकॉज यू हैव सेलेक्टेड हाईलाइटर, तो ये बार बार क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टच दिस पेन। यहाँ पे जो आपने पेन का ऑप्शन टच किया था वहां पे टच करेंगे। ये टच करने के बाद खुद ही क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। और जब अब आप स्क्रॉल करोगे तो आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा। नेक्स्ट पेज आने के बाद एक चीज आप देख रहे हैं, यू कैन सी, जो आपने फर्स्ट पेज पे आपने किया था जो भी हाईलाइटर यूज, वो इस पेज पे ऑटोमेटिकली आ रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, अगेन यू विल टच दिस पेन एंड यहाँ पे क्लिक। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज when you have done something on the screen with the pen, with highlighter, okay, and along with you students are also doing the same. So how you will reduce this kind of problem? So firstly you should go to the menu bar, where is on the bottom it is given, go to the more option. When you will touch this more option, you will get one meeting setting. Touch this meeting setting. Many options are there. You can see annotate.
You can see here annotate option is there. You have to disable it, as I have disabled already. Okay, don't enable it like this. If your setting is in this way, you have to disable this, and yes, now it is fine, it is okay. Now no one can write on the screen except the host. Got it? Next one. So till here understood, I think. When you will go to the next page, I have already told that what you will do, clear this, it will be clear, and then go to the next page. Okay, now when you will share the screen, what happened, I have told you. और क्या बताना था? Along with this, the students ask their queries with the chat option. You can see here the chat option is there. They can chat with you. They can give you the message. Through the message, they can ask the question and then send to you, and you also can send. Okay, with the help of chat. And they can ask verbally by unmuting themselves. They will unmute them. After that, they can ask the query. Fine. I hope that this video will helpful for you. Now the last portion, again what you will do, again go to the participant and take the screenshot so that you can check any student has left in between the lesson or not. Okay, and then you will maintain the attendance register according to this. Now how you will bind up the meeting or the lecture? By this option. Here is the option. 1 minute. One more thing is there. If you want to share your rear camera, like if you want to use any notes, any book exercise is there, and you want to share, so you can see. So first of all, what you will do, here our front camera is on, and you want to use your back camera, and you want to show what is whatever you want to show. If you want to write anything on the page and you want to show it, then how you will do this? You can do like go to the this rear camera option, touch this. This is already front camera is on. When you will touch it, back camera will open. See, I am using, this is the book notes. Fine, you can use like this. Or if you want to write, you can use A4 sheet and can write on the A4 sheet. Yes, this is only I want to share. First of all, let me select the front camera. Yes, now it is selected. So let me select the front camera. I have selected. Now this is how I want. This is what I want to share with you. That how you will use this Zoom app. I think I have done my from my side. If you want to end up the meeting or your lecture, what you will do, the last part, go to the end option. You will get two option, end meeting for all, or the second option, leave meeting. Always you have to select the end meeting for all. When you will select leave meeting, only you will leave from the meeting and rest will be there. So what you will select, only select this one, end meeting for all. When you select this end meeting for all, meeting will got over. Okay, so from my side it is done. I hope that you have understood and this video will helpful for you all. Thank you guys. Thanks.